me immense pleasure to extend you all a warm welcome and greeting on the behalf of Technia Group of Technia Institute of Advanced Studies to this insightful Technia TV show. It's truly a moment of joy and inspiration to have such esteemed guests and speakers gathered here today. Today's talk show will not only thought-provoking but also a great opportunity to learn from experts who are shaping the future. On the behalf of everyone, I take this opportunity to welcome our esteemed guest, Mr. Ravindra Gautam, Director TIRES, Dr. Ajay Kumar, Dean Academics, Dr. M.N. Jha sir, Dr. H.N. Bahuguna sir, Director TIRES CDL, and all the faculty members present here for this Technia talk show. Before starting up the event, I would request Dr. M.N. Jha sir for giving us some opening remark. Our guest of honor, Mr. Ravindra Gautam, HODs, Dr. Susam Bahuguna, Dr. Sivendu Roy, Dr. Pooja Sharma, colleagues, Dr. Monisha, Dr. Archana, Dr. Gopal Thakur, our colleague Dr. CDL, Professor H.M. Bahuguna, and last but not the least, in uniform, my dearest lot of students. A very good afternoon. We keep on doing something new in our institute. We try to infuse lot many things. But again, I keep on repeating in past as well. We need your support. Support primarily in the sense of state discipline be important part of the process what we are adopting by attending class and following the instruction of the faculty members, HODs, departments, college, so that we could also be encouraged to arrange lot many such things for you all. The talk show, the format of talk show is nothing new, but yes, in Technia we have started primarily with the guests interacting with you all. Later on we will make you be on the dash. The way I am talking to you, what I will like you all to come over the dash and talk to the rest of your friends and guests over there in the next series of the talk show. There might be many dimensions of talk show, but today we are focusing on your issues, your problem, what in general you are facing or we are facing, you as a student to shape your career you are facing. Everyone is facing everywhere. You also might have some issues. You also might have some of the target. You would have achieved, met your target, and some you are on the way to do it. And you would have thought, what will the outcomes of this pursuit of academic process at the end of the UG or the PG program, what you would think and how you will fulfill all this. You would have thought it, but you need to be supported. You also need to share your issues and problems with the expert. It is our pleasure to introduce you Mr. Ravindra Gautam. I won't say much about him. He himself will narrate. He is a man of many facets from media field. He is expert of the many areas. He has addressed lot many such gathering and attended lot many such talks show. And this is a matter of pride for us that from the day onward he is to be the very important part of our institution. I will request him to be over the desk later on because our Honorable Chairman sir is also on the way. He is to attend. He is very, very curious to talk to you. Time and again he instructs us, why don't you call the students? I will talk. Mr. Chairman sir want to interact with you that what issue you are facing in shaping your career. We have also started one of the very important departments, that is psychology, clinical psychology, keeping the issues and problem in general
nowadays the youngsters face. She is here to address you. She is sitting in the campus and she has started to slot how to interact with you all. To girls and boys, this is my advice. Stay in touch with that department I am calling before addressing further on. Miss Pragati would be Dr. Pragati to be on the dais. She is HOD, Department of Clinical Psychology, which we are going to start it. Pragati ma'am, it is better if you be on the dais, please. Thank you for the wonderful and warm introduction, sir. And also my most humble thanks to all the members who were a part of selecting me here. I'm really grateful for the opportunity. I usually prefer speaking in English when I'm giving any conversational talks, but आज मैंने सोचा आज अपनी approach change करें. जो भाषा अपनी होती है उसमें इंसान बोलता हुआ भी अपना लगता है. इसलिए आज मैं हिंदी में दिल से आपसे कुछ बात करूँगी. आज मैं आप सभी से सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ. क्या आप जीवन में कभी भी ऐसे दौर पे आए हैं जहाँ आपको लगता है आपको इतना तनाव महसूस हुआ है कि आपकी सहनशीलता के भी पार हो गया हो? सब कहीं ना कहीं तो इसे महसूस तो कर रहे हैं, है ना? कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, कभी लगता है बहुत ज़्यादा उदास हैं, कभी लगता है इतनी घबराहट है कि सहा ही नहीं जा रहा है. शायद स्कूल के काम से, जॉब के काम से, फैमिली के स्ट्रेस से, आर्थिक स्थिति की वजह से कभी ना कभी हम सब ऐसे दौर से गुज़रते हैं जहां हम इतने दबाव में होते हैं, पर फिर भी हम अपना सफ़र रोकते नहीं हैं, चलते जाते हैं, ना किसी को बताते हैं. अगर मैं ये पूछूं कि आप में से कौन है जिसने कभी दुख, परेशानी या तनाव ना महसूस किया हो, तो कोई हाथ उठा सकता है? कोई भी ऐसा जिसने कभी कोई तनाव महसूस ना किया हो, कोई दुख महसूस ना किया हो, कभी घबराहट महसूस ना करी हो, कभी ऐसा ना लगा हो कि आज बस बिस्तर छोड़ के उठने का मन ही नहीं है, ना दोस्तों से मिलने का, ना खाने का, ना घूमने का? ऐसा हम में से कोई भी नहीं होगा. फिर हम इतना क्यों हिचकिचाते हैं जब हम मानसिक मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, जब हम सब ऐसे किसी ना किसी दौर से हमेशा गुजरे ही हैं. आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ. ये मेरी कहानी नहीं है, ये आप सभी की कहानी है. कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में चल रहे हैं. आपके पास एक भारी बैग है और उसमें कुछ पत्थर रखे हैं. हर आकार के पत्थर हैं, हर भार के पत्थर हैं. कुछ छोटे पत्थर हैं, जैसे कि आम तौर पे लगी हुई छोटी मोटी समस्याएं. आज असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, आज जल्दी निकलना था पर क्लास बंक करने को नहीं मिला. छोटी छोटी समस्याएं. आज मेट्रो लेट मिली, जाने में लेट हो जाएगा. पर कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे गहरे डर या बड़ी समस्याएं. अब सफ़र बड़ा लंबा है. जैसे जैसे आप चलते हैं, रास्ते के और भी पत्थर आप बैग में डालते जाते हैं. कुछ समय बाद छोटे पत्थर, बड़े पत्थर डालते डालते वो सफ़र और मुश्किल लगने लगता है, बैग और भारी होने लगता है. एक समय सफ़र में ऐसा आता है कि आप एक कदम भी और नहीं चल पाते और वहीं पे थमने लगते हैं. आसपास देखते हैं, लोग तो हैं मदद करने के लिए, लेकिन आप नहीं मांगते मदद, क्योंकि आपको लगता है अगर मैं अपने भार के लिए किसी से मदद मांगूंगा तो वो क्या कहेगा, कितना कमज़ोर आदमी है, अपना खुद का बस्ता खुद भी नहीं उठा सकता. एक समय ऐसा आता है जब आप आगे एक कदम भी नहीं बढ़ सकते और धीरे धीरे ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि काश ये सफ़र ख़त्म हो जाता, अगर मैं ये सफ़र ख़त्म कर दूं तो. यह बैग और उसके भीतर के पत्थर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समाज की सोच को दर्शाते हैं. एक मनोवैज्ञानिक या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हाथ बढ़ाकर आपका बैग हल्का कर सकता है. जैसे जैसे आप थेरेपी की मदद लेंगे, आप उन पत्थरों को एक एक खुद निकालना सीख जाएंगे, अपने सफ़र को खुद आसान बनाना सीख जाएंगे. मैं यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए हूँ, चाहे आप किसी कठिन समय से गुजर रहे हों, या आपके मित्र को कोई समस्या हो, या आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो ऐसे एक कठिन समय से गुजर रहा हो, तो आप उनको हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी ओपीडी में ला सकते हैं.
पीजी ब्लॉक में हमारी ओपीडी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ही है, एंड यू कैन ऑल स्टे इन टच विद मी रिगार्डिंग एनी इश्यूज यू हैव. एकेडमिक डिफ़िकल्टी हो, फैमिली डिफ़िकल्टी हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, वी आर देयर फॉर यू. एंड ये जानना ज़रूर बहुत ज़रूरी है कि अपनी मानसिक स्थिति के लिए मदद मांगना कमज़ोरी नहीं दर्शाता है, बहुत हिम्मत दर्शाता है. थैंक यू. In general, what we perceive, we faculty here in Technia, कि मेरे बच्चे हिम्मत वाले हैं. In general, यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. मैडम, आपने हिंदी में एड्रेस किया, लेकिन जब कुछ अब शब्द हिंदी के इस्तेमाल कर रहे थे तो कई बच्चों को देखा कि अपने फ्रेंड से पूछ रहे थे शायद इसका मतलब इंग्लिश में क्या होता है, एज इफ इंग्लिश इज देयर मदर टंग and Hindi is the language from. It's my pleasure to welcome our Honorable Chairman, Dr. Ram Kailash Gupta sir. As I had told earlier, he is on the way and he is very keen to interact with you. Time and again he is interested to interact and to solve your problems. So he has come today. Once again, a huge round of applause for our Honorable Chairman. In the meantime, as I told, man of many facets, success coach, independent journalist, Mr. Ravindra Gautam, our guest of honor, he is also amongst us. This is my pleasure. Before moving ahead, I am requesting, before going for the rest formalities, to be on the dais and introduce himself first, please. Thank you. So आज आप लोगों के साथ चर्चा होनी है और हम लोग बात करेंगे कि भाई जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस को कैसे अचीव किया जाए. यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति है जो सक्सेस को नहीं पाना चाहता है? कोई है? और कितने लोग हैं जो सक्सेस अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? देखो, जो लोग हाथ नहीं खड़ेंगे उनको सक्सेस मिलेगी नहीं. चलिए, तो झा साहब ने कहा कि पहले मैं अपने विषय में बता दूं. तो जैसा मेरा नाम है रविंद्र गौतम और मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं और सक्सेस कोच. जी बिजनेस के साथ मैं एक शो करता हूं, विनर्स विद रविंद्र गौतम, और उसमें मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से उन्होंने कैसे जीवन में सक्सेस अचीव की है उस पर बात करता हूं. और उस अनुभव में इतना अनुभव दिया है उन लोगों के अनुभव ने, उनके एक्सपीरियंसेस ने, कि किसी भी व्यक्ति को सफलता यदि पानी है तो उसके लिए जीवन में उसे क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, क्या रोड मैप होना चाहिए, इसके ऊपर बात करनी है. और आप सब लोग युवा हैं और हमारा देश पूरा युवा देश है, यंग कंट्री है. हमारे देश में कहा जाता है कि भाई जो युवा है वो डिविडेंड है, लेकिन युवा देश तभी बनेगा, विकसित हमारा देश तभी होगा जब आप सब लोग अपने जीवन में अपने गोल्स को अचीव करेंगे. और गोल अचीव करने के लिए स्टीयरिंग आपको अपने हाथ में लेना पड़ता है, और स्टीयरिंग जब आप हाथ में लेते हैं तो नेविगेशन भी आपको सही से उसे करना पड़ता है. यदि आप स्टीयरिंग आपने संभाल लिया है और उसके साथ साथ आप रील और शॉर्ट्स में लग गए तो एक्सीडेंट पक्का है, कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं. तो इसलिए फोकस बनाएं जीवन में और आगे बढ़ें. और अभी हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से आपके जो गोल्स हैं उन्हें अचीव किया जा सकता है और उसका क्या आउटकम हो सकता है. थैंक यू. Before starting up with the talk show, let's begin this enlightening session by our promising traditional ceremony, lamp lighting. As a tribute to Goddess Saraswati, the mother of knowledge, I would like to request all the dignitaries to come forward and lighten the lamp. शारदे मां
felicitate our distinguished chief guest, Mr. Ravindra Gautam, I request our chairman, sir, to kindly felicitate our guest of honor. Mr. Gautam is a very senior journalist. As he told you that earlier he was with GTV and number of other TV channels and in other media sector. So I welcome you, sir, and thank you very much. Mr. Gautam. हम स्टूडेंट से बात करें और इस कड़ी को एक रूटीन सिस्टम बनाएं और इस सिस्टम में कोई हमारी आज का दिन बहुत ख़ास दिन है। मुझे नहीं पता कि आप कितने बच्चों को इस चीज़ का मालूम है। आज नवग्रहों के हिसाब से बहुत, अगर आप YouTube पे जाके देखें, आज चंद्रमा, सूर्य, राहु, केतु 6 ग्रहों का मिलन है आज के दिन। और आज के दिन बहुत सारी शुरुआत हो रही हैं और ये शुरुआत भी आज हम आपसे बात करने की कर रहे हैं। इसके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग आप अपने लिए करें। मेरे थोड़ा सा जरा पीछे करो उसको। और इसका कोई बहुत बड़ा कोई महत्व इस टॉक का नहीं है। टॉक का महत्व क्या है कि हम एक दूसरे को जानें, समझें। हम भी कभी स्टूडेंट्स थे तो हमें लगता था कि हमारे कॉलेज के सीनियर्स ने क्या हमसे कभी हमारे मन की बात पूछी, बात करी, जानना चाहा। और अगर वो हमारे मन में कोई बात है तो कम से कम हमारे जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनके मन में ये बात ना रहे जो हमने कभी महसूस की। और इस कड़ी में हम आपसे मिलके बात करें। बात करने का अगर सिलसिला शुरू करते हैं तो आज का टॉपिक आवर टारगेट, अचीवमेंट एंड आउटकम। मेरी इंग्लिश जरा कमजोर है, लेकिन अगर इसका मकसद कोई समझा सकता है कोई बच्चा? आप बताइए। Okay, so our target is basically what we are planning to do, कि हम आगे अपने फ्यूचर में क्या करेंगे। एंड आवर अचीवमेंट्स इज व्हाट आवर गोल, कि हम उस टारगेट से अचीव क्या करेंगे एंड आउटकम उस अचीवमेंट से हमको क्या प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू। इनके क्लैपिंग जोरदार है। सो स्टूडेंट्स, हम अगर एक मिनट के लिए सोचें, एज ए इंसान हम इस पृथ्वी पे जो आए हैं, हमारा जो जन्म हुआ है, क्या उसके मकसद क्या है उसका? हमारा जन्म हो गया, जो भी हमारे पीछे आज के कारण रहे होंगे, और हमारा लाइफ में क्या टारगेट क्या है और क्या हमें अचीव करना है। पूरी लाइफ की मैं बात कर रहा हूं। हम स्कूल एजुकेशन में पढ़ते हैं, हमारे माँ बाप की, पेरेंट्स की हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फिर हम स्कूल से निकल के कॉलेज में आते हैं। कुछ बच्चों को तो ये पर्पस होता है कि भाई हम कॉलेज में जाके पढ़ें, एक अच्छा बिजनेस करें, हायर एजुकेशन में जाएं, कोई रिसर्च पीएचडी करे, कोई बिजनेस करे, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करे, या हम एंटरप्रेन्योर बन के अपने अपने एरिया में काम करें। लेकिन उसके बाद क्या, अगर हम लाइफ की बात करें, और आज पहला दिन है आपसे बात करने का, हम लाइफ की और सब चीज़ों की बात नहीं करते, इसको सम अप करके एक चीज़ पे ले आते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं क्यों? अपने आप से हम एक क्वेश्चन करें, हम यहाँ बैठे हैं क्यों? हमने आईपी यूनिवर्सिटी में या टेक्निया में एडमिशन लिया क्यों? क्या हमारा टारगेट है, क्या करना हम चाहते हैं? पहला तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हर बच्चे के मन में होगा और होना भी चाहिए। फिर उसके लिए हमें अपने टारगेट जो हमारा है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, और उस टारगेट को अचीव करने के अंदर
अल्टीमेट हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, हमारा आउटकम क्या है, क्या हमने जिस टारगेट को लेके एडमिशन लिया, जिस बात को लेके कॉलेज में हम आए, आईपी के इतने सारे टेस्ट दिए, इतने सारे स्कूलों का हमने सर्वे किया, कॉलेजेस का सर्वे किया, यहाँ पर एडमिशन लिया, रोज़ क्लास अटेंड करी, रोज़ टीचर्स की कभी कभी मीठी मीठी डांट सुनी, क्लास में क्यों नहीं जाते हो, ये क्यों नहीं करते हो, वो क्यों नहीं करते हो। तो इस सब का पर्पस क्या है? क्या हम में से कितने बच्चों ने अपने आप से ये सवाल आज तक कभी किया है? जरा हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों ने अपने आप से या अपने मन में कभी सोचा है इस बात को? एक भी नहीं? या शर्मा रहे हैं कि पहले हाथ कौन खड़ा करे? हैं? आज अगर हम 10 रुपए का कोई बच्चा गुब्बारा मांगता है तो उस गुब्बारे को खरीदने के लिए भी 2 बार सोचते हैं कि 10 रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं, हमारे बच्चे की जिज्ञासा है, उसको खेलने के लिए चाहिए, हम उसको इसलिए परचेज करें, या जो बेच रहा है उसके ऊपर दया करके चलो यार इसके गुब्बारे बिक जाएंगे, हम वैसे इसको देंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, चलो एक गुब्बारा ले लेते हैं, इसकी हेल्प हो जाएगी। कोई ना कोई मकसद तो उसके पीछे होता ही है। तो इसका मतलब अगर हमने ये बात आज तक नहीं सोची कि हमने क्यों एडमिशन लिया, क्यों हम आईपी यूनिवर्सिटी में आए या कहीं भी टेक्निया में आए, या क्यों हमने यहाँ पर ये सब कुछ किया, बस फिर आगे का कुछ सवाल नहीं हो पाएगा, हमें यहीं रुकना पड़ेगा। आप बताएं कि क्यों नहीं सोचा, क्यों हमने एडमिशन लिया? सर मैंने इसलिए एडमिशन लिया क्योंकि मैं जर्नलिज्म एंड मास कॉम फील्ड को पूरा एक्सप्लोर करना चाहती थी। एंड सर मैं अपना पीआर में अब करियर देखती हूँ और मैं इसलिए अपनी स्किल्स पे काम कर रही हूँ। जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं पीआर एग्जीक्यूटिव बनने के लिए, वो सारी चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ। एंड वैकेंसीज देखती हूँ। मतलब बीजेएमसी डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज भी हैं जो मुझे बहुत अच्छे से गाइड भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने जितना कुछ सीखा यहीं से सीखा, और अभी भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो मेरे मतलब इतने कांटेक्ट में डेली मेरी उनसे बात होती है, वो मुझे समझाते हैं छोटी छोटी चीज़ें। बहुत अच्छी बात है। आपका अल्टीमेट व्हाट इज, क्या नाम है आपका? मानसी शर्मा। मानसी शर्मा, व्हाट इज योर अल्टीमेट एम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस बीजेएमसी कोर्स? व्हाट यू वांट्स टू बी? सर आई वांट टू बी अ पीआर एग्जीक्यूटिव। पीआर एग्जीक्यूटिव। आपका ये 3 इयर्स कोर्स है, 4 इयर्स कोर्स है? 3 इयर्स सर। 3 इयर्स कोर्स है। आपको लगता है कि जिस एक्सपेक्टेशन से हमने एडमिशन लिया, जो टारगेट मुझे अचीव करना है, आपको अचीव करना है, उस टारगेट के ऊपर आप पूरी तरीके से अग्रसर हैं, पूरा काम कर रही हैं, हो रहा है? सर फर्स्ट सेकंड ईयर में उतना क्लियर नहीं थी, बट थर्ड ईयर में आई हूँ तो काम भी कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। बाकी थोड़ी गाइडेंस की मुझे लगता है और आवश्यकता है, अगर मिल जाए तो बस। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरा ये सवाल इन्होंने अपने आप से किया कि मैंने क्यों एडमिशन लिया, और अब इनको अपने ही सवाल का जवाब खुद से मिल रहा है। जो ये मुझे एक पीआर एग्जीक्यूटिव बनना था, मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मुझे इतना समझ नहीं था, थर्ड ईयर में आके मुझे और मेरा एरिया खुला, मेरे टीचर्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे हेल्प किया। लेकिन मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ आज के इस टॉपिक को देखते हुए कि पहला हमारा टारगेट क्या है। हर बच्चे के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। आपका टारगेट केवल बीजेएमसी का ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पाना नहीं होना चाहिए। बीबीए का, बीसीए का, जो भी आपका सर्टिफिकेशन से कोई फायदा नहीं है। आप उस सर्टिफिकेट को पाके क्या करेंगे, क्या करना है? आपको अगर बीसीए करने के बाद हायर एजुकेशन में जाना है तो आपको जब तक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी अब ग्रेजुएशन में बीसीए के कोर्स में, सभी कोर्सों में आ गई है, बीसीए में तो स्पेशली आईटी का इतना इनबिल्ट उसके अंदर प्रोग्राम्स आ गए हैं। जो मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम थे वो सारे अभी ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए हैं। 4th ईयर में अभी आपका रिसर्च स्टार्ट होने वाली है 4-5 कोर्स के अंदर। और जो ग्रेजुएशन में कोर्स थे अभी गवर्नमेंट ने 9th 10th 11th 12th के अंदर वो
सारा सिलेबस कन्वर्ट कर दिया है। तो आप अगर हमें हमारी बात का, हमारे क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलेगा कि हम क्यों ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम कभी भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। पहली बात, ये गोल हमेशा 24 आवर्स हमारे दिमाग में होना चाहिए, चाहे हम क्लास में हैं, चाहे हम कैंटीन में हैं, चाहे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे हुए गप्पे मार रहे हैं, बॉयफ्रेंड के साथ बैठे हैं, या हम टीचर के साथ क्लास में पढ़ रहे हैं, वट एवर, बट योर टारगेट मस्ट बी विद यू। अदरवाइज कॉलेज अटेंड करने का, आने का हमारा कोई फायदा नहीं है। अब आउटकम की बात, आउटकम तो तब होगा जब हमारा ये जो हमारा प्रोसेस है, अचीवमेंट हमें जो अचीव करना है, उस अचीवमेंट के लिए आपके पास 3 साल का या 2 साल का जो कोर्स है। मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में डोसा अगर का ऑर्डर करते हैं, सांभर इडली का ऑर्डर करते हैं, तो उसका एक फिक्स पैकेज होता है और आपको वो सब चीज़ें एक फिक्स पैकेज की तरह मिलती हैं, लेकिन उसमें सांभर आपकी फ्री है, चटनी आपकी फ्री है, सैलड आपका फ्री है। इसी तरीके से आपके कोर्सेज में एक कोर्स है जो आईपी यूनिवर्सिटी का सिलेबस का पार्ट है। उस सिलेबस को आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाना है, आपको वो पढ़ना है। पढ़ने और पढ़ाने के बाद उसके बाद आउटकम क्या आया वो आपको सीखना है, समझना है। लेकिन उसके अलावा कितने बच्चों को पता है कि हमारे कॉलेज के अंदर एक किसी भी सेक्शन में, माने किसी भी स्ट्रीम के अंदर कितने क्लब्स हमारे यहाँ कॉलेज में हैं? हमारे कितने क्लब्स हैं टेक्निया के अंदर? कोई बच्चा बता सकता है? 15 क्लब है। जरा क्लैपिंग करें इनके लिए। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रोजाना वेबसाइट देखते हैं, टेक्निया की वेबसाइट पे जाते हैं? कोई बच्चा? नन ऑफ यू। कितने बच्चे हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखते हैं? कितने आप में से बच्चे ऐसे हैं जो यूजीसी या दूसरी और सीनियर एआईसीटी की या दूसरे कॉलेजेस की वेबसाइट्स को देखते हैं? गुड। हम लोग कहां हैं, यह हमें सोचना पड़ेगा, वरना बच्चों होगा क्या, 2 साल 3 साल की इस जर्नी के बाद एक सर्टिफिकेट का टुकड़ा हमारे हाथ में होगा और हम जॉब के लिए या कॉर्पोरेट सेक्टर में या उसके लिए घूमते रहेंगे और कुछ हमारे को मिलेगा नहीं। और अल्टीमेटली क्या होगा, यार आईपी यूनिवर्सिटी तो ऐसे ही है, टेक्निया तो बस ऐसे ही है। अल्टीमेटली यही हमारे मन में खुद आएगा। हमें क्लब्स हमारे यहां कितने हैं, तो अगर ये सब चीजें नहीं हैं, फिर हम अपना टारगेट कैसे अचीव कर पाएंगे? कितने बच्चे हैं हमारे में से जो हमें हायर एजुकेशन में आगे, जिन बच्चों को ये लगता है कि हमें आगे पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन के बाद हमें मास्टर्स करना है, मास्टर्स के बाद हमें पीएचडी करनी है, जरा हाथ खड़ा करें। हायर एजुकेशन में जिन बच्चों ने जाना है, जिन बच्चों को हायर एजुकेशन में जाना है, 10% के करीब। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिजनेस, या तो उनका पेरेंटल बिजनेस है, फादर का बिजनेस है, या मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है? ओके, ये भी ऑलमोस्ट 10%। कितने बच्चे रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो जिनको कॉर्पोरेट में जॉब करनी है, जॉब जिनको करनी है? ज्यादा बच्चे हैं। देखिए, मैं आज आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मैंने 60 रुपए महीने की जॉब की है, 4 दिन, 4 डेज मैंने अपनी लाइफ में नौकरी की, 60 रुपीज पर मंथ के ऊपर। मैं दिल्ली कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहा था। हमारे कज़न हरियाणा से हमारे यहाँ आए रहने के लिए, उनको यहाँ सीए करना था
और वो सीए कर रहे थे, तो साथ साथ वो जॉब भी ट्राई कर रहे थे। उन्होंने एक दिन कहा कि भैया मेरे को एक इंटरव्यू के लिए कॉल आई है और मुझे वहां जाना है। मैंने कहा यार चलो, मेरे स्कूटर था मेरे पास उन दिनों, मैंने कहा आप बैठो स्कूटर पे, मैं भी चलता हूँ साथ में। हम दोनों वहां पे गए और जैसे वो सामने आपका कंट्रोल रूम है, उस जो मैनेजर, उनके जो ऑनर थे, डायरेक्टर, उनके रूम में वो इंटरव्यू कर रहे थे। मैं बाहर वेटिंग में जैसे बैठा था, वेट कर रहा था, तो उनको इंटरव्यू के लिए गए और इंटरव्यू के लिए गए तो और भी काफी सारे कैंडिडेट्स थे। पता नहीं जब वो इंटरव्यू दे के आए 10 मिनट के बाद हम चलने लगे तो पीछे से उनके पियोन ने आवाज दी, कहने लगे सर आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा, जो इंटरव्यू दे के आए थे, मैंने कहा आपको बुला रहे हैं सर। बोला नहीं आपको नहीं, उनको नहीं सर, आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे, मेरे से क्यों बुला रहे हैं, मुझे कोई ना, मैं इंटरव्यू देने आया हूं, तो इनके साथ आया था। बोला नहीं सर ने कहा कि आपको बुला रहे हैं। मैं वहां गया, मैंने कहा नमस्कार सर। बोले आप कैसे, मैंने कहा मैं उनके साथ आया था और ये। बोले उनको तो जॉब हम नहीं दे रहे हैं, क्या आप ये जॉब करना चाहते हो? मैंने कहा मैं यार, मुझे ना जॉब करनी, मैं पढ़ रहा हूं, कोई मेरे को जॉब का इंटरेस्ट नहीं है अभी। बोले आप अगर जॉब करना चाहो तो आपको हम ऑफर करते हैं। अब उन्होंने क्या देखा, क्या बात थी, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा भी क्या जॉब क्या है? उन्होंने कहा कि हमारे उनकी जो कपड़ा मिलें होती हैं और जो खड्डी पे कपड़ा जो बुनते हैं, उनके अंदर सुइयां होती हैं, और वो लुधियाना में कहीं सुइयां बनाने का उनका फैक्ट्री थी उनकी, और वो यहाँ उनका ऑफिस था, सेल्स ऑफिस, और वो सुइयां जो है सेल करनी होती थी, जो लोग खड्डियों पे माल बनाते थे उनके यहाँ। तो मैंने कहा यार एक काम कर सकते हैं सर, आप इनको जॉब दे दो या मुझे जॉब दे दो, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं, लेकिन इस पे इंसेंटिव क्या है? उन्होंने बोली इतना रुपए आपको जॉब के 60 रुपीज सैलरी मिलेगी और इतना इंसेंटिव मिलेगा। हमने 4 दिन के अंदर उनके इतना सारा माल सेल कर दिया। हमने कहा हमें जॉब नहीं करनी, हमें आप अपनी एजेंसी दे दो। उन्होंने 4 दिन के बाद हमें अपनी वो एजेंसी दे दी, और वो एजेंसी हमने जो हमारे कजन थे उनको दिया और उनको कहा भाई आप इसके ऊपर काम करो। मेरा कहने का पर्पज आपसे ये है कि हमें अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होता है। अगर हम केवल यही सोचते रहेंगे, तभी कभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आके आपको प्लेट में सामने नहीं आएंगे कि भी ये लो, और आएंगे भी तो भी आप उस पर कितना कॉन्शियस हो पाएंगे, कितना उस पर काम कर पाएंगे, कितना उसको अवेल कर पाएंगे, कितना उसको माने उससे फायदा उठा पाएंगे, ये डिपेंड करता है। तो हमें लाइफ में, चाहे हमें हायर एजुकेशन में जाना है, चाहे हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके नौकरी करनी है, हमारा जो अचीवमेंट है, आउटकम है, वो आउटकम तब आएगा जब हमारे इस टारगेट वाले सेक्टर के अंदर जो हमारा ये 2, 3, 4 साल का जो पीरियड है, ये हमारा केवल बहुत पहले होता था कि क्लासों में जाकर के आप गए, टीचर ने पढ़ा दिया और अपने घर चले गए और आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सब चीजें चेंज हो गई हैं। अदरवाइज भी आप अगर केवल थ्योरी पार्ट सुन लेंगे, समझ लेंगे, बड़े बड़े, अब वो क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जामिनेशन के अंदर बड़े बड़े पेपर जवाब नहीं आते हैं, और आपको जब तक आप अपना माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक प्रैक्टिकल चीजों को आपको नॉलेज नहीं होगी, आप आंसर नहीं कर पाएंगे। और प्रैक्टिकल आपको नॉलेज तभी होगी जब आपने वो चीजें प्रैक्टिकल कभी की होंगी, और प्रैक्टिकल की होंगी तभी आप उसका जवाब दे पाओगे, और की होंगी तो आप समझ पाओगे। आज के समय में हमें पढ़ाना नहीं है, पढ़ना नहीं है, सीखना है। पढ़ना नहीं है, सीखना है, तो तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सो मित्रों, मेरा आपसे हम्बल सबमिशन है कि हम कुछ काम डेली करना शुरू करें। पहली बात, डेली हम अपनी वेबसाइट को देखें। हमारे जो कैलेंडर्स हैं, वेबसाइट के ऊपर कैलेंडर है, टाइम टेबल तो आपको मालूम है, भी आज उसकी क्लास होनी है, ये क्लास होनी है। ज्यादातर क्लास में सर आज वो टीचर नहीं आया, आज वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा है कि जो मेरा टाइम टेबल है
जो सिलेबस मुझे पढ़ाना था, मेरे टीचर ने कितना सिलेबस पढ़ा दिया, कितना पढ़ाना बाकी है अभी? क्या आप लोग कभी एनालिसिस करते हैं? क्या वो बाकी सिलेबस पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? आप अपने आप से सवाल करिए, अपने आप इसका जवाब सोचिए, और अपने आप ही हमें क्या करना है डिसाइड करिए, और उसके बाद ही आपका टारगेट है आप अचीव कर पाएंगे। हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपोजर के अंदर ध्यान नहीं देते। क्लब्स की एक्टिविटीज में, क्लब क्यों हमारी सरकार ने, क्यों गवर्नमेंट ने, या क्यों किसी कॉलेज ने, क्यों किसी यूनिवर्सिटी ने क्लब्स बनाए हैं? उन क्लबों से हमें बहुत कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है। आपका सोशल क्लब में जाके आप ये सीखते हैं कि भी आप सोशलाइजेशन कैसे करेंगे। सोशलाइजेशन करने से केवल आप सोशल काम कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस सोशलाइजेशन से ही आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। वही जो आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे, जो आपके रिलेशंस बनेंगे, उन रिलेशंस को आप के वजह से आप कहीं के कहीं पहुंच पाएंगे। आप चाहे ब्लड डोनेशन कैंप की बात हो, चाहे आपके जितने भी आपके 3 आईटी के अभी जो फेस्ट होने वाली हैं, आईपी यूनिवर्सिटी में जो आपके गेम्स होते हैं या इतने बड़े बड़े जो आप प्रोग्राम्स होते हैं, कितने बच्चे हमारे आईपी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है? अपना हाथ खड़ा करें अपने बच्चों में। कितने बच्चों ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों ने। हम आईपी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में 10 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉलेज से कहा गया कि ये करो, या हमारा अपना इंटरेस्ट था। कॉलेज के बच्चों के प्रोग्राम में हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, या ये जितनी चीज़ें मैंने कही हम नहीं देख पा रहे हैं, तो यकीन मानिए इनसे हमें जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा, हम चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम चीज़ों के लिए डिमांडिंग, आप अपने डिमांड रखनी अपने टीचर से कि मैडम मेरा ये सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, प्लीज आप बताइए कैसे पूरा करेंगे, कब पूरा करेंगे। आपका अधिकार है, राइट है आपका। आप पूछिए टीचर से अपने, मैडम मेरा ये प्रोजेक्ट नहीं हो पा रहा है, इस प्रोजेक्ट में मेरी आप हेल्प करिए एज ए मेंटोर, कि भी मुझे कैसे करना है। लेकिन माहौल कुछ ऐसा बन जाता है कि भाई सारे बच्चे कैंटीन पे बैठ गए, क्लास में चले गए, ज़्यादा ज़्यादा लैब में चले गए, एग्ज़ाम दे दिया, पेपर दे दिया। जब बात प्रोजेक्ट की आई तो प्रोजेक्ट कहीं से कॉपी करके दे दिया, किसी ने अपना बना के दे दिया, किसी ने कैसे करके, फॉर्मेलिटी पूरी होगी, नंबर मिल गए, सर्टिफिकेट मिल गया, काम खत्म हो गया। दोस्तों इस सब से मैं आपको बहुत, मेरी बात आप मोबाइल खोल के रिकॉर्ड कर लो। आप लाइफ में याद करेंगे कि किसी मेरे सर ने ऐसा कहा था, और याद करेंगे इस बात को कि ये जो टाइम जो हमारा है, जिसमें हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स, हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। हम जो नहीं हो रहे हैं, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो स्पोर्ट्स हैं, चाहे वो क्लब्स हैं, चाहे वो रिसर्च है, चाहे हमारे दूसरे एरियाज़ की बात है, अगर नहीं होंगे तो हमें लास्ट में फिर ज़ीरो रहेगा। कोई उसका हमारा जो है हम आउटकम की बात कर रहे हैं, उसकी हमें उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, और अगर उम्मीद करनी है तो ये सब काम हमें करने चाहिए। कोई बच्चा इसी टॉपिक पे, इसी बात पे अपने व्यूज रखना चाहता है तो प्लीज हाथ खड़ा करे और अपने बात कहे। एनी स्टूडेंट, आपने अभी कुछ अटेंड किया था, आप कुछ बोलना चाहेंगे? एनी स्टूडेंट, इसी टॉपिक पे, इसी बात पे कि हमें आपको, अगर यहाँ हम ओपन डिस्कशन है, आपको लगता है कि हमारे कॉलेज में हमें सर ये फैसिलिटीज और मिलनी चाहिए, ये चीजें हमारे लिए और डेवलप करनी चाहिए, हमें और इसका फायदा मिलेगा, हम उसके लिए वी आर रेडी। हमें पता चलना चाहिए कि भी ये चीज में हमारे पास और हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये हमारा एक बच्चा स्माइल कर रहा है, स्माइल अगर आपको वाकई मन में है तो आप आइए बताइए, या आप जर्नल कितना जर्नल निकलते हैं, हमारे पब्लिकेशन कितने हैं टेक्निया के, हमारे टेक्निया के कितने ऑफिशियल आपका न्यूज बुलेटिन्स हैं, या न्यूज़पेपर है,
या आपका जर्नल है, क्या क्या चीजें हैं, कौन बच्चा बता पाएगा? किसी को मालूम है हमारा जर्नल का नाम क्या है? यंगस्टर। यंगस्टर इज ए न्यूज़पेपर, वो यंगस्टर न्यूज़पेपर है। जर्नल कौन सा है? रिसर्च जर्नल। टेक्निया, क्या नाम है सर? टेक्निया जर्नल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। तो मैनेजमेंट का जर्नल है, और उसी मैनेजमेंट के जर्नल में आपके आईटी के भी राइटअप्स हम लोग डालते हैं, मास कम्युनिकेशन के भी राइटअप डालते हैं। उसमें से कोई बच्चा किसी जर्नल के किसी टॉपिक पे, आज उसको 5,000 रुपये प्राइज मिलेगा यहां अभी ऑन द स्पॉट। आपने किसी जर्नल का कोई आपका जो राइटअप उसमें लिखा हो उसके बारे में एक्सप्लेन करके बताए। एनी स्टूडेंट। यंगस्टर में कितने बच्चों के राइटअप छपे आप में से? यंगस्टर के बारे में आप सबको बहुत थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा मालूम है। यंगस्टर में कितने बच्चों के राइटअप छपे हैं? कितने बच्चों ने प्लेसमेंट के लिए अपने आप को रजिस्टर किया? अभी मुझे जॉब चाहिए, इसके लिए प्लेसमेंट सेल में रजिस्टर किया हुआ है? जरा हाथ खड़ा करें। यही आप में से कोई बच्चा एक बताए, आप क्या सोचते हैं? आप आइए प्लीज, आइए एक मिनट, आओ। क्या नाम है आपका? है दक्ष। कौन सी क्लास में आप? आइए। बीजेएमसी सेकेंड ईयर। आप किस प्रकार की क्या जॉब चाहते हैं? क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? कैसी जॉब आपको मिलनी चाहिए? जरा प्लीज एक्सप्लेन करें। सर मेरा इंटरेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग में है और वीडियो एडिटिंग में, तो मैं चाहता हूँ प्लेसमेंट मुझे उन्हीं 2 डिपार्टमेंट में से किसी में मिले। कितने पैसे की जॉब आपको मिले? क्या आपको फर्स्ट ऑफर अगर कोई की जाए, कोई भी ऑफर करता है कोई भी कंपनी, कितना आपका मिनिमम सैलरी उसका पैकेज होना चाहिए? सर एज अ एक्सपीरियंस एटलीस्ट 50K पर मंथ। 50K। यस। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। अभी और बताइए, दूसरे बच्चे किसने हाथ खड़ा किया था? सर मैंने कंटेंट राइटिंग किया हुआ है, 1.5 ईयर्स से मैं कंटेंट राइटिंग कर। यस सर। सर मेरी लास्ट सैलरी 25K थी, तो अब मेरा 30 to 40 के बीच में रहेगा। यस सर। और बताएं पीछे क्या, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपको अगर कोई जॉब ऑफर करे तो कितने पैसे की सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिलनी चाहिए मिनिमम? सिर्फ सिंपल सा सवाल है, क्या कितने की जॉब आपको लगता है कि आपको मिलनी चाहिए? सर अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, तो फाइनल ईयर होने के बाद कितने की जॉब मिलनी चाहिए? सर अभी टारगेट क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट करना क्या है, AIML में जाना है या साइबर सिक्योरिटी में। टारगेट अचीवमेंट क्या होनी चाहिए मेरी फाइनल होने के बाद, 4th ईयर के बाद एग्जैक्ट मैं किस जगह जाऊंगा? मतलब फर्स्ट ईयर में मैं पूरा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। क्या गुड, बहुत बहुत बढ़िया बात है। क्लैपिंग, तालियां बजाइए उनके लिए। नेक्स्ट, हमें पहले अपना टारगेट सेट करना है। हमारा टारगेट सेट होना चाहिए कि हमें करना क्या है। ऐसी वेग नहीं, हम भाई हमें तो जॉब मिलनी चाहिए, 1 लाख रुपए की जॉब होगी तो हम कर लेंगे, 50,000 की होगी तो कर लेंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बहुत बढ़िया बात बच्चे ने की, मेरा टारगेट क्या है, ये मुझे टारगेट अपना फिक्स करना है, फिर उसके ऊपर काम करना है। और जो 3 इयर्स कोर्स होते हैं जनरली, इसमें फर्स्ट ईयर में हम लोग स्कूल लाइफ से आके कॉलेज लाइफ में अपने आप को उसके अंदर अपना टारगेट को समझते हैं और मार्केट को समझते हैं। हमारी अपनी, मान लीजिए मैनेजमेंट के हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे को क्या स्पेशलाइजेशन लेना है, किस एरिया में जाना है, और सेकंड ईयर से अपना टारगेट वो अचीव करना शुरू कर देते हैं। तो टारगेट हम समझें। मैं जो 50,000 का जिस बच्चे ने बात की थी आपने, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक एडवर्टीजमेंट देते हैं, एक पेपर में, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देने में 1,000-2,000 रुपये लगते हैं। अगर हम छोटे से न्यूज़पेपर में हिंदी इंग्लिश में छोटी सी दें, जो भी पैसा लगता है, आप यकीन मानिए कि 2,000 रुपये 1,000 रुपये का न्यूज़पेपर में ऐड देने के बाद लगभग 1,000-2,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आ जाती हैं जॉब के लिए। 2,000 एप्लीकेशंस। और उन एप्लीकेशंस में जिन लोगों ने PhD तक, हालांकि PhD में कम होते हैं,
जो नॉन पीएचडीज होते हैं, मास्टर्स जिन लोगों ने किया होता है, वो लोग बोलते हैं सर मेरे को 15-20 हज़ार रुपए की भी आप शुरुआत कर दें, कोई बात नहीं, मैं आई एम रेडी। क्यों है ऐसा? वो बच्चे ऐसा वो इस लेवल पे जाने के बाद, मास्टर्स करने के बाद और साल 2 साल वो अपना घर पे बैठने के बाद फिर भी उनको लगता है कि 15-20-25 हज़ार रुपए में मुझे जॉब मिल जाए तो ठीक है, और हम ऐसा सोचते हैं कि हमें 50,000 की जॉब चाहिए। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? प्लीज बेटे बताएं। सर, इसके पीछे ये वजह हो सकती है कि उन्होंने कभी अपनी स्किल्स के ऊपर काम ही नहीं करा। अगर हम अपनी स्किल्स को इस तरीके से डेवलप करेंगे कि हम कहीं भी जा रहे हैं तो परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, तो कोई हमें सैलरी क्यों ऑफर नहीं करेगा। हम अपनी हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स वो स्किल्स पे काम करना ही अचीवमेंट। हमारी अचीवमेंट क्या है? हमारी ट्रेनिंग का पार्ट, हमें जो काम स्कूल में कॉलेज में जो हमें प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, उनको हम अगर समझ लेंगे, उनको प्रैक्टिकल करेंगे, उनकी नॉलेज हमारे को होगी, तो क्यों हमें जॉब अच्छी नहीं मिलेगी? क्यों हमें 50,000 या 1 लाख नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन वो करेंगे तब ना। बात हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारा टारगेट क्या है और हमारी उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं। और आप तो जो बात कर रही हैं जॉब की, वो तो एक अचीवमेंट की बात है, आउटकम की बात है। तो हमें बेसिकली टारगेट बनाना एक पार्ट है, आउटकम होना दूसरी बात है। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो हमारी जो टारगेट्स के बीच में अचीवमेंट्स जिसका वर्ड उन्होंने लिखा है, जिसके लिए कि हमें काम करना चाहिए 2 साल 3 साल, उनमें कुछ टिप्स मैं आपको देता हूं। 1 घंटे का मुझे टाइम मैक्सिमम अलाउ हुआ था, लेकिन हम इस बात को आज के बाद सोचें कि हमारे पेरेंट्स की इतनी मेहनत की कमाई, जिन्होंने पैसा देके हमारी फीस जमा कराई है, हमें यहाँ तक भेजा है, आप लोगों ने इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करने के बाद आप लोगों को ये एडमिशन ये मिला है, और फिर भी अगर हम अपने टारगेट को, अपने आउटकम को, जो हमें जिसलिए हमने एडमिशन लिया है, उसके लिए काम नहीं कर पाए, तो क्या ये समय दोबारा आ पाएगा? क्या हम इस काम को दोबारा कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। अगर जैसे बच्चे ने कहा कि अगर हम अपने स्किल्स में पूरा काम करेंगे, प्रैक्टिकल लैब में, अपनी क्लास में प्रैक्टिकल थ्योरी क्लब्स में, तो हमें 1 लाख की भी जॉब मिलेगी। क्योंकि आदमी वो खेल में भी बहुत सारी एजुकेशन हमें मिलती है, बहुत कुछ हम सीखते हैं, बहुत कुछ हमें नॉलेज बढ़ती है हमारी। और जो चीजें आज मान लीजिए क्लब्स भी 18 क्लब्स आपके पास हैं, आज से ही अपने टीचर से पूछिए, क्लास टीचर से, मैडम सर मेरा कौन से क्लब में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, उन क्लबों में अपने आप को इनरोल करिए। आपकी जो बहुत सारे क्लब्स का ये मतलब नहीं, क्लब का मतलब केवल ये नहीं है कि आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके खेल रहे हैं, वही क्लब हैं। आपके आईटी सेक्टर में बहुत कंप्यूटर पे बैठ करके बहुत सारे क्लब्स हैं, जो आपको कंप्यूटर पे बैठ के उन क्लबों में कॉम्पिटिटिव चीजें करनी पड़ती हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वो आपको देने पड़ते हैं। आप अपनी वेबसाइट को रोज देखिए, आप अपने कैलेंडर को रोज देखिए, आप अपने टीचर से जो सिलेबस आपका इनकम्प्लीट है उसकी बात आप कीजिए, आपको जो चीजें आपको चाहिए उनकी बात करिए। और एक और मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, लाइफ में एक बात याद रखना, कभी भी अपना एक ईगो या एक टारगेट ये नहीं बनाना कि मुझे 50,000 से कम की सैलरी नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं करना, मुझे 1 लाख से कम की नहीं मिलेगी तो मुझे नहीं करना। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी जिस भी लेवल पे मिले, आप स्टार्ट कीजिए। आपको दूसरा ज्यादा की मिल जाएगा, छोड़ के दूसरा स्विच ऑफ कर लीजिए। थर्ड मिलेगी, थर्ड को स्विच ऑफ कीजिए। लेकिन ये नहीं कि भाई मैं इसको मुझे करना नहीं है। और उस जॉब को करने के लिए ही ये जितनी भी चीजें आपको आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एजुकेशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, यूजीसी ने, एआईसीटी ने, आपकी आईपी यूनिवर्सिटी ने, आपके टेक्निकल कॉलेज ने जितनी भी चीजें बनाई हैं, ये केवल उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके फोकस किया गया है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। उन्हीं की प्रैक्टिकल वर्कशॉप है ये, उन्हीं की प्रैक्टिकल चीजें हैं। उनको आज से ही जितना हम कर पाए ठीक है,
और जितना नहीं कर पाए उनको आज से करना शुरू करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि वेबसाइट्स को देखिए, छोटे छोटे कैप्सूल कोर्सेज कीजिए। हमारे यहाँ इग्नू का सेंटर है अस्तवक्रा के साथ में, वहाँ 2-2, 3-3 महीने के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में यहाँ जो मिल रहा है वो ठीक है, नहीं तो आप वो क्या वहाँ 500, 700, 2000, 3000 रुपये में आपका बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज, आपके नए नए कोर्सेज आ रहे हैं। उन कोर्सेज को लेकर के 2-3 कोर्स भी अगर इस दौरान आप कर लेंगे तो आपका टारगेट आप अचीव कर पाएंगे। पूरी दिल्ली में पहला कॉलेज आपका है यूजीसी ने जिसको डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर आपको इक्विवेलेंट टू एमबीए करने की अपॉर्चुनिटी टेक्निया को दी है। पहला कॉलेज दिल्ली के अंदर है, पूरी दिल्ली में कोई भी एक कॉलेज नहीं है जिसको कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है। आप अपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे बच्चे हमारे बीएड करते हैं, आप डुअल डिग्री यूजीसी ने अलाउ कर दी है। आप मास्टर डिग्री में एमए करिए साथ साथ, या आप बीएड करिए, या आप डॉक्टर बनना है तो आप एमएस करिए, इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग का कोर्स करिए, प्लस आप ये पीजीडीएम का कोर्स करिए तो आपको इक्विवेलेंट टू एमबीए की डिग्री साथ साथ डिस्टेंस लर्निंग भी मिल जाएगी। तो आपका डुअल डिग्री में दोनों ही कोर्स उसी टेन्योर में, उसी टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर एक मास्टर डिग्री किए हुए किसी बच्चे को अगर मास्टर्स नहीं होता, बीएड कर लेता है, तो उसकी गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से लगभग सैलरी मिलती है 40,000, 50,000। और अगर उसने साथ में मास्टर किया हो तो उसकी सैलरी है 90,000, 87,000 समथिंग। इसी प्रकार से आप जब कभी कॉर्पोरेट में जाएंगे तो आपकी कम से कम नॉलेज तो आपने अपने बेस पे लेना ही है। जो आपको डिस्टेंस लर्निंग में डिग्री मिलेगी वो तो आपको यहाँ से मिलेगी, लेकिन उस डिग्री के बेस पे आपकी सैलरी, आपका पैकेज एटलीस्ट जरूर डबल के आसपास हो जाएगा। उसको आप कर सकते हैं। कैप्सूल कोर्सेज मैंने बताया कि आप इग्नू से कर सकते हैं। आप अपने टीचर से बात कीजिए कि सर मुझे सर ये स्किल्स चाहिए, मुझे आपके मार्केटिंग स्किल्स का छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, मुझे सोशल मीडिया का कोर्स करना है, मुझे अकाउंट्स का कोर्स करना है, मुझे आपका लॉ के आपके कंपनी लॉज की बात करनी है, मुझे बड़ा होकर के मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे कंपनी लॉज, एक कंपनी में क्या क्या कानून होते हैं, एक कंपनी को रजिस्टर करने के लिए कैसे रजिस्टर किया जाता है, जीएसटी नंबर कैसे लिया जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या होगा, फॉरेन में अगर आपको फॉरेन ट्रेड करना है या इंडिया में ट्रेड करना है तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, आपको एक इंडस्ट्री लगानी है तो उसका लाइसेंस कैसे लोगे, उसका आप कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड करवाओगे। इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों के आपके पास सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको इस डिग्री के साथ साथ वो सब भी करने चाहिए। लगभग AICTE के 50 कोर्सेज हैं, कैप्सूल कोर्सेज 50 कैप्सूल कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मैं कोई टेक्निया की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं यहाँ। आप यूजीसी के पास 48 के करीब कोर्सेज हैं, AICTE के पास 50 कोर्सेज हैं, प्रधानमंत्री स्किल योजना के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज को आप ऑप्ट करिए। 5-6 पोर्टल गवर्नमेंट ने खोले हैं। IP यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है जॉब के लिए, आपको उसके ऊपर कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है IP यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। IP यूनिवर्सिटी का सेंट्रलाइज एक आपका प्लेसमेंट सेल का एक पोर्टल है। आपको चाहे किसी भी कॉलेज का बच्चा हो वहां अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा सकता है, ताकि मैं ग्रेजुएशन यहां से करूं या मास्टर करूं तो मुझे जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी वहां से भी कॉल आ सकती है, वहां रजिस्ट्रेशन कराइए। आपका दिल्ली सरकार का एक पोर्टल है, उसके अंदर कई लाखों जॉब्स अवेलेबल रहती हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री योजना के अंदर 75 लाख कंपनीज का उसके अंदर रजिस्ट्रेशन है, जिनको जॉब जब भी चाहिए होती है वो वहां डिस्प्ले करते हैं, वहां आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन इस सब के लिए हमें काम करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, और जो हम अचीवमेंट की बात कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। प्लीज बेटे। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे, और बहुत सारा ज्ञान आपने दिया और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला आज आपसे। पर मेरा एक छोटा सा सवाल रहेगा आपसे कि कैसे पुस्तकें पढ़ने से हमें सफलता प्राप्त होती है। एज अ जर्नलिस्ट स्टूडेंट मेरे को ये क्वेश्चन आपसे पूछना ही था कि कैसे पुस्तकें, हम अगर पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उससे सफलता कैसे प्राप्त हो सकती है। मैं इसका जवाब, हाँ जी।
सफलता का किसी पुस्तक पढ़ने से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। पुस्तकें पढ़ना हमारे लाइफ का एक पार्ट है, नॉलेज को गेन करना। किसी समय में आप हार्ड कॉपी पुस्तक को पढ़ते थे, आज आप YouTube के ऊपर किसी भी पुस्तक का, किसी भी बुक का ट्रांसलेशन आप देख लेते हैं YouTube के ऊपर। आज आप एक कुकू FM आप वहां का मेंबरशिप लीजिए 39 या 49 रुपीज में। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप कान पे लगाइए, आप कोई भी बुक, उसमें लाखों करोड़ों किताबें उसके अंदर हैं, किसी भी बुक को आप वहां डालेंगे, वो बुक के आपको ट्रांसलेशन आपको हिंदी में सुनाई देने लगेगा। आपको ये जरूरी नहीं है कि वो किताब पढ़ना है, लेकिन जो हमारे जर्नलिस्ट मैडम का जो क्वेश्चन है, सक्सेस की डेफिनेशन एक अलग डेफिनेशन है। सक्सेस आदमी वो भी है जो कभी एक किताब पढ़ा ही नहीं किसी ने, और सक्सेस वो भी है जो किताबें पढ़ पढ़ के उसने कई PhD की डिग्री की है और बहुत सारी थीसिस लिखी हैं और बहुत सारे कॉलेज में सीनियर्स को पढ़ाया है। सक्सेस का क्या टारगेट है, इसका पैमाना क्या है सक्सेस का, बताइए। सर मेरे हिसाब से सक्सेस का पैमाना है हर वक्त सीखते रहना, कीप लर्निंग। गुड। सक्सेस का सीखते रहना एक पाथ है। मेरी एक किताब है, कितने बच्चों को मिली है? नहीं मिली, एडमिशन के टाइम पे। क्या नाम है उस किताब का? बताइए, आप बताइए, आपने सबसे पहले बोला मैं एडमिशन के टाइम मिली, नाम बताइए। कितने बच्चों ने किताब वो पढ़ी है? ईमानदारी से बताइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द पाथ ऑफ सक्सेस। उस बुक का नाम है सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द पाथ ऑफ सक्सेस। आत्मविश्वास सफलता का आधार। मेरा कॉन्फिडेंस एक रास्ता है सफलता की ओर, और सफलता का कोई आज तक कोई पैमाना नहीं बना। सफलता एक छोले बेचने वाला, चाय बनाने वाला आदमी कहता है कि मैं जीवन में सफल हूं, मैं चाय बना रहा हूं, बढ़िया पैसे कमा रहा हूं, बढ़िया काम, अपना काम कर रहा हूं। उसका सोचने का लेवल सफलता का वही है। अंबानी पेट्रोल पंप पे लगाया, पेट्रोल पंप लगाने के बाद आज ही इज द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया इन पूरे वर्ल्ड में, और वो आज भी लगे हुए हैं। वो अपने आप को कहते हैं भी सफलता मेरी अभी बाकी है। तो सफलता वो है जहां पर हम किसी टारगेट को अपना फिक्स करें और उस टारगेट को अचीव ले लें, वही आपकी सफलता है। तो पहले आपको अपने आप को सफल साबित करने के लिए अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। जी प्लीज साक्षी। BJMC first year student. Right. As you told us about target achievements, and I have heard a lot that strategic planning is a really important part of it. So I want to know from you that what is the role of it in target achievement? What is the role of strategic planning in target achievement? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे ऐसे कौन सी गलतियाँ करते हैं अपने एकेडमिक्स और फ्यूचर टारगेट्स को बनाने में? मैं इसको बहुत समय ना लूंगा। कोई बच्चा गलती नहीं करता। ये हम सोचते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। मैडम ने ये बात कही है, क्लैपिंग करो मैडम के लिए। जीवन में कोई आदमी कभी गलती नहीं करता, ये मान लीजिए। हम हर गलती से सीखते हैं और हमें सीखना चाहिए। वो गलती नहीं है, वो हमारे लिए एक लेसन है, वो हमारे लिए एक स्टेप है। हमारी जो जीना है, जो हमारी जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी का एक स्टेप है। आपने देखा कि क्रिकेट में कोई ऐसा प्लेयर हो जो कभी हारा ना हो, या हार के वो क्रिकेटर ना बना हो। कोई ऐसा हीरो है जिसकी फिल्में फ्लॉप ना हुई हो और वो जाकर के टॉप का हीरो बना हो। कोई ऐसा आपने टॉप इंडस्ट्रीज देखा हो जो कभी जिसके शेयर मार्केट शेयर में गिरे ना हो या वो फेल्योर ना हो। दीज आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। कोई गलती नहीं है बेटे, पहली बात।
आपने दोबारा सवाल रिपीट करें बेटे, क्या कहा? हाँ, आपका क्या सवाल था? मैंने बोला था कि आपने हमें टारगेट अचीवमेंट के बारे में बताया। टारगेट अचीवमेंट, प्लीज दोबारा रिपीट करें। आई वांट टू आस्क व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन टारगेट अचीवमेंट। राइट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हम जब से बात कर रहे हैं एक ही इसी भी बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हमें अगर टारगेट अचीव करना है तो हमें उसकी स्ट्रेटेजी कोई प्लानिंग करनी चाहिए। अभी आज आपके यहाँ डॉक्टर अभी मैडम ने ज्वाइन किया है एम्स से, डॉक्टर प्रगति जी ने, वो एक बहुत बड़ी एम्स के अंदर साइकोलॉजी की सीनियर प्रोफेसर हैं। उनको हमने यहां रोल पे रखा है कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और साइकोलॉजी केवल जो मेंटल लोग होते हैं उनकी साइकोलॉजी नहीं होती, साइकोलॉजी ऑफ योर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, योर मैनेजमेंट साइकोलॉजी, आपका आज की शेयर मार्केट की साइकोलॉजी, गोल्ड मार्केट की साइकोलॉजी, हर चीज की अपनी एक साइकोलॉजी है। उस साइकोलॉजी को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके लिए अपना टारगेट फिक्स करना और फिर ग्रेजुअली उस टारगेट को हमें अचीव करना, उसके लिए ट्राई करना। जरूरी नहीं है कि आपने टारगेट फिक्स कर दिया तो एक ही बार में उस टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे, उसके लिए ट्राई करना। और मैं इंश्योर करता हूं कि अगर हमने ट्राई किया तो उस टारगेट को हम जरूर अचीव करते हैं। एक और बुक, एनीहाउ बेटे आप बताइए प्लीज, आपने हैंड रेज किया है, माइक दें। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम पूर्णिमा और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ BJMC में। गुड सर, हम इस जिंदगी में आए खाली हाथ हैं और हम जाएंगे भी खाली हाथ जी। तो फिर आपने हमारे को बताया कि हमारे को सक्सेस अचीव करना है, इतने अचीवमेंट्स अचीव मतलब करना है अचीव। तो सर जैसे जैसे हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ भी एक होती है। तो अचीव करते करते अपने सक्सेस में जो हमारी थिन लाइन होती है, एक पतली सी लकीर होती है वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में, तो हम उसमें बैलेंस कैसे रखें? हम अपने आप को भी भूल जाते हैं, हमारी मजबूरियां ऐसी आ जाती है अचीवमेंट्स में कि हम अपनी लाइफ भूल जाते हैं। तो उसकी जो लकीर है हम उसको कैसे मजबूत रखें? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहली बात तो मैं ये मानता हूं कि हम खाली हाथ नहीं आते और ना ही यहां से खाली हाथ जाते। मेरी थ्योरी शायद आप बाकियों से कुछ अलग हो सकती है। लोग बोलते हैं ऐसा, वो लोग बोलते हैं जो साधु संत महात्मा रिलीजियस जो लोग होते हैं, हम लोग जब आते हैं अपने हाथ की लकीरों को, अपना भाग्य को, अपने पास्ट सिस्टम, एक बच्चा पैदा होता है एक गरीब घर में, एक बच्चा पैदा होता है एक राजा के घर में, एक बच्चा पैदा होता है मिडिल क्लास के घर में। क्यों? क्या डिफरेंस है? कोई तो कुछ होगा ना। तो हम उन कर्मों पे और धार्मिक रिलीजियस चीजों पे नहीं जाते, उन विश्वासों की बात नहीं करें। लेकिन आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ये है कि हम आए हैं और हमें जाना है और खाली हाथ नहीं आते, खाली हाथ नहीं जा रहे। जब हम जाते हैं तब भी बहुत सारी चीजें साथ छोड़ के जाते हैं, साथ लेके जाते हैं। इसको मैं शॉर्ट करते हुए, जो उन्होंने कहा कि एक पतली सी लकीर है। दोस्तों, मित्रों, आप हमारे, मैं आपको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करता हूं, बोलता हूं कि ये जीवन भी एक पतली सी लकीर है। हमें इसको बैलेंस करना है। हमें अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना है, अपने पेरेंट्स को भी उनकी एक्सपेक्टेशन को भी बैलेंस करना है, हमें अपना कैरियर को भी बैलेंस करना है। जो आदमी इस बैलेंसिंग को सीख जाता है वो आदमी कभी लाइफ में डिसहार्टेड नहीं होता, कॉन्फिडेंट होता है और वो हर चीज को अचीव करता है, जिसको ये बैलेंसिंग आ जाती है। आपको अपना एक प्लान बनाना चाहिए। जैसे आपका कैलेंडर बनता है पूरे साल का, आपके 2 सेमेस्टर होंगे, इस सेमेस्टर में इतना सिलेबस होगा, इतने घंटे की पढ़ाई होगी, ये पढ़ाया जाएगा, ये आपका बाकी एक्टिविटीज होंगी। एक कैलेंडर बनता है, यूनिवर्सिटी का कैलेंडर बनता है, हर कॉलेज का कैलेंडर बनता है। आपको अपना कैलेंडर भी बनाना चाहिए। और उसके बाद आपको अपनी पर्सनल लाइफ की, जो आपने बात की बेटे, पर्सनल लाइफ भी बहुत जरूरी है।
आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें, आप मेडिकली अपने आप को चेक कराएं, आप घूमने जाएं, बहुत सारी जो पर्सनल लाइफ के पर्सनल ग्रोथ के लिए जो काम करने हैं वो करें, वो भी बहुत जरूरी है। तो आपने कहा उसके अंदर एक पतली सी लकीर है, उस लकीर को हमें मैनेज करना है। आज का जो टाइम आ रहा है, समय आ रहा है, इस पतली लकीर के, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात हो, चाहे ये हस्बैंड वाइफ के बीच की बात हो, चाहे ये लड़का और लड़की के बीच की बात हो, चाहे हमारे और अदरवाइज किसी भी उसमें सेक्शन में, एक पतली लकीर ही तो है। उस लकीर को हमें मैनेज करना है। हमें कितना टाइम किस चीज के लिए देना है। अगर हमें इतना टाइम हमारी पढ़ाई के लिए देना है, इतना टाइम हमें अपनी पर्सनल लाइफ के लिए देना है, इतना टाइम हमें अपने एंजॉयमेंट के लिए देना है, तो आपका बैलेंस हो गया। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम दियांजु शर्मा है फ्रॉम सेकेंड ईयर BJMC। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि हम लोग, सुनो बेटे, सुनिए, सवाल सुनिए इनका, एक दूसरे के सवाल से हम समझ पाएंगे, प्लीज। आपने बताया कि टारगेट हमने सेट किया, फिर हमने अचीव किया उस चीज़ को, फिर हमारा जो आउटकम आया तो हम उसको सेलिब्रेट किस तरीके से करें। मतलब मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि आप अपनी अचीवमेंट्स को कैसे सेलिब्रेट करते हो, उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, मैं वो जानना चाहती हूँ आपसे। मैं बताता हूँ, मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि हम कभी किसी को पढ़ा भी पाएंगे। 9th और 10th क्लास के अंदर हमारी क्लास में, मैं क्लास का मॉनिटर होता था और एक बच्चे को मैं बहुत पिटाई करता था उसकी, और पिटाई इसलिए करता था कि वो बहुत टैलेंटेड था, पढ़ता नहीं था। और मेरी थोड़ी सी पिटाई के बाद, मतलब पिटाई का मतलब मीठी मीठी पिटाई की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं था, उसको मैं पढ़ाता था रात को। और आज वो DDA के अंदर, मिस्टर गुलियानी नाम है उनका, DDA के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं, और आज वो मेरे पैर छूता है। जो आपने अचीवमेंट की बात करी, यही अचीवमेंट है। मैं अभी इंदौर से एक शादी में आ रहा था, मेरे साथ मेरे एक दोस्त एयरक्राफ्ट में मेरे साथ बैठे थे। एक लड़की जो उनकी एयर होस्टेस होती है, वो सामने से स्माइल करके चली गई। तो मेरे जो साथ में बैठे थे उन्होंने कहा, गुप्ता जी आपने कुछ नोटिस किया, ये लड़की बड़ी स्माइल करके जा रही है आपकी तरफ। मैंने कहा यार मैंने नहीं ध्यान दिया, होगा कोई बात नहीं। वो दोबारा फिर उसने स्माइल किया, तो मैंने कहा बेटे रुको, एनीथिंग स्पेशल? बोला सर आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैंने नहीं पहचाना। आई वॉज योर स्टूडेंट इन द ईयर सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। और आपने मुझे याद है, मेरे को, मैं स्टेज पे थी, आपने मेरी तारीफ की थी, आपने मुझे ये प्राइज दिया था, ये कहा था, वो कहा था। हाँ मुझे याद आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे ये मैंने जो वो बोलती कि मैं हाँ करता चला गया, जबकि मुझे कुछ याद नहीं था। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। और उस बच्चे ने कहा कि सर एक सरप्राइज और दूं मैं आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे जो इस प्लेन को जो एक लड़की उड़ा रही है, को पायलट है, वो भी आपके कॉलेज की स्टूडेंट है। मैंने कहा भी हमारा तो मैनेजमेंट का कॉलेज है, वो ये इंजीनियरिंग टेक्निक की बात है, वो कैसे हो सकता है कि। उसने कहा सर उसने आपके यहाँ से MBA करने के बाद, हम लोग एक बैचमेट थे, मैं वो एक क्लास आ गई थी, और उसने फिर पायलट ट्रेनिंग का कोर्स किया, और पायलट आज वो मेरे साथ ही है इसी फ्लाइट में। तो मैं आपको, मुझे कुछ डाउट लग रहा था, मैं आपको इंश्योर करना चाह रही थी कि आप चेयरमैन सर ही है ना, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको ज्यादा वो नहीं किया। तो उसने, मैं अभी बताती हूँ, उसने जाके वहां उनको कहा कि हमारे चेयरमैन सर फ्लाइट में है। तो उसने अनाउंस किया, आई एम को कैप्टन सो एंड सो, माई चेयरमैन इज फ्लाइंग विद अस, आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पैसेंजर काइंडली क्लैप फॉर हिम, फॉर मी। उनके लिए आप जरा क्लैप करें। सारी फ्लाइट के लोगों ने, ऑलमोस्ट सबने क्लैपिंग किया। वो जो को पायलट थी, केक लेके आई अपने कैबिन से, आके मुझे हक किया, पैर छुए और केक उनको दे के गई। बाहर में वो बाद में बाहर तक छोड़ने के लिए आई। तो क्या अचीवमेंट हो सकती है? आपने कहा भी इसका अचीवमेंट क्या हो सकता है, इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है बेटे? हो सकता है क्या पैसों की कीमत से इन चीजों को तोला जा सकता है, सोचा जा सकता है? मेरे अचीवमेंट की बात मत सोचिए, मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है
लोग कहा करते हैं कि नरक होता है, स्वर्ग होता है। मैं कई बार कहता हूं कि मुझे तो ये लगता है कि यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा स्वर्ग है। मेरे को भगवान अगर एक दिन की जिंदगी दे या 1000 साल की जिंदगी दे, मैं ऐसे बच्चों के साथ मिलता रहूं, बात करता रहूं, और मैं स्वर्ग में हूं। दिस इज माई टारगेट। सो बात यहां खत्म नहीं होती। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहूंगा कि आप अपनी जितनी चीजें आपने अभी कहा है कि हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम चीजों में पार्टिसिपेट कीजिए। अपने टारगेट बनाइए, आपके टारगेट कम बनाइए। आपको अचीव ज्यादा हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टारगेट बड़े बड़े टारगेट बना लेंगे, आपको चीजें नहीं मिलेंगी, तकलीफ होगी। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनके लिए काम कीजिए और उनको अचीव कीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आपने बहुत बड़ा टारगेट बना लिया, मुझे रेखा गुप्ता की तरह दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनना है, और नहीं बन पाओगे तो तकलीफ होगी। आपको लगेगा कि मैं अपनी क्लास की मॉनिटर बनूंगी, मैं हाईएस्ट मार्क्स लेके आऊंगी, अपनी क्लास में टॉपर होंगी, और आप अचीव कर लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए मैंने टारगेट बनाया था, मैंने उसको अचीव किया। इसी प्रकार के छोटे छोटे टारगेट बनाइए। मैं अपने ये जो भी टारगेट्स आप बना सकते हैं, बना करके और उनको अचीव कीजिए। छोटे छोटे टारगेट्स आप बनाएंगे, आपको कदम कदम पे खुशियां मिलेंगी, और उससे बड़े बड़े टारगेट आप बनाना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। लास्ट में एक ही बात, एक गाने की, गीत की 2 लाइनों में एक कवि ने कहा है, सुनना चाहेंगे? दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख के अंदर सुख की ज्योति, और दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान। दर्द सह कर जन्म लेता हर कोई इंसान, हर कोई इंसान, और वो सुखी है, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, कोरा ही रह गया, कोरा ही रह। इस कोरे कागज पे आप अपनी इबादत लिखें, अपने जीवन का फ्यूचर लिखें, अपने जीवन का इतिहास लिखें। ये आपके अपने हाथ में है। थैंक यू वेरी मच।